Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. लोग पूरे गार्लेंड लिया कि नहीं? Thank you. Thank you, sir. Thank you. अब मैं सुधीर यादव जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और गायन करें आनंद जयवंत साहब। थैंक यू सुधीर जी। अब मैं राजेंद्र जी जैन को आमंत्रित करता हूँ कि वो गार्लैंडिंग करें और आगे जी। थैंक यू राजेंद्र जी। थैंक यू राजेंद्र जी। तो मैं राजेश गोयकर जी को आमंत्रित करता हूं कि मनीष गोदा साहब को गार्लैंड करें। आमंत्रित करता हूं कि तलेसा साहब को माला पहना के उनका स्वागत किया जाए। थोड़ा मेरे से टॉल है मगर तो दुल्हन तो छोटी होती है ना सब मेरे से। इसी टाइम है जब तलेसा साहब किसी के सामने झुकते हैं। क्या बढ़िया डायलॉग हमारा सतीश राय साहब ने। इनके लिए 4 लाइनें मैं बोलता हूं कि सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर बूंद इस संसार की। एक दूसरे को अरे सर दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं ना। थैंक यू सो मच। Now I think we can start our program. I welcome all the delegates, all the COSMA members, or to be COSMA members. I appeal all the people who are here, who have not filled up the form yet, but after this visit and after seeing the COSMA Brotherhood, everybody would like to become a member of this group, COSMA group. And I think I would say that it is invaluable. This group can really do wonders if we all gather on one platform under one roof. तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि कॉस्मा का स्टार्टिंग जैसा आप ये देख रहे हैं कि नेविगेटिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ जर्नी टू वर्ल्ड क्लास। It was established in the year 1988 when 3
like-minded people. 3 or 4, sir? 4 like-minded people. Mr. Satish Kaji Sahab, please. So it was established in the year 1988. The intention was uniting panel builders all over the country. Panel builders of Rajasthan, like today we are doing it, they thought in the year 1988. So it's a brief history. Our founder, Chairman Emeritus, Sri Satish Kaji, had experienced that control panel manufacturers were meeting only at customers premises. ये देखा अपन ने कि जब कोई कहीं पे bidding हो रही है, कहीं पे negotiation हो रहे हैं, that time only all the panel builders they used to go there. Quite often it was generating a feeling of animosity among those competing for the orders. So they used to come for the order, अभी ज़रा ये ले जाएगा order, ये आ गया, ऐसा वो सब animosity type की चीज थी. In order to overcome this evil feeling, Kaji Sahab, along with late Sri Asim Mazumdar Sahab, Sri Kamlakar Phadke Sahab, Sri Naveen Shah Sahab, they decided to form an association of All India basis. It was earlier it started in Bombay, but gradually it developed all over India now. And named it as Control Panel and Switchgear Manufacturers Association, COSMA. That is COSMA. So that was on 1st of April 1988. Many people might have thought, yeah, they are making fool of us. It's a 1st of April. But it wasn't like that. Today, ये हकीकत बन गया है. COSMA has become a big tree now, banyan tree, I would say. Over the years, the association has grown and spread to 16 states of India, union territories with over, it's written 500 members, but I am glad to tell you that it has exceeded 600 also. It is more than 600. In such a short span, we will be having around 40 members in Rajasthan itself. COSMA Rajasthan, so 3 cheers for COSMA Rajasthan. So थोड़ा सा broad way में सतीश काजी साहब को आप लोग देख लीजिए. We envision COSMA as the premier association of control panel and switchgear manufacturers. It is not only control panel building. All the associated people like accessories manufacturers, switchgear manufacturers, we are welcoming all those people also. This is for continuously striving to elevate the quality of products and services, thereby creating value for the customers in India and the world at large. So we want COSMA's first vision is that all the customers in India or abroad, they should get a quality product from the COSMA panel builders or any other members. He is Mr. Sanjeev Khenawar, our president at present, to foster a fraternity of control panel and switchgear manufacturers devoted to creation of trust among our customers and well-wishers, to nurture high standards of quality in all products and services, to seek avenues for the creation of better relation with the customers. So again and again I tell you, better relation with the customer, better relation with the principals, that is what it required in COSMA. To generate higher goodwill amongst our members. For each of us, we should have a goodwill image in our front for the other panel builder, for the other member. To recognize that wealth and abundance are fundamental gift from nature for those who strive, and coexistence is the key to sustenance of our ecosystem. To help our members to seek and pursue knowledge as a means for betterment of personal position and continuing growth for the self as well as for the society. So what are the objectives of COSMA now? Let us discuss that. So to create professional brotherhood and friendship, to bring unity and cooperation amongst members. This is the first and foremost thing which we want to have in COSMA. To work for mutual benefit and progress in technical as well as commercial aspects of business. So when we say mutual benefit, and this I have experienced in the last 1-2 months,
You know what happened in my one of the panels? मेरे को CPWD को वो पैनल देना था and the inspection was there after 4 days. Now what to do? The material is not available. MCBs मिलती नहीं है, ACBs मिलती नहीं है, कभी आपको अंडर वोल्टेज नहीं मिलेगी, कभी आपको शंट ट्रिप नहीं मिलेगी. Now what to do? If you go to the manufacturer, if you go to your principal, they will say यार 15 दिन लगेंगे, हमारे यहाँ तो बिलिंग होगा, बुकिंग होगा, ये होगा, वो होगा. So better 1,000 रुपए के आइटम के लिए अपना 10 लाख 20 लाख रुपए का पैनल होता है, वो खड़ा रहता है. So you know what I did? I took a liberty to the person who is in Assam. Virendra Singh ji is there, our COSMA member in Assam. From him, I called for MCCBs 250 ampere, 50 kilo ampere fault level की. अब it is not available so easily. 50 kilo ampere fault. Generally, people go for 250 or 160 ampere, not with 25 kilo ampere or 36 kilo ampere. Luckily, I flashed it on the COSMA business our WhatsApp group. He came forward. संजीव जी मेरे पास पड़ी. I asked him, यार मेरे को भेज दो. I didn't have money. I didn't have money to buy because all the money was already घुसा चला गया था अंदर पैनल्स के बनाने में. पैसे ही नहीं थे, 1 महीने से वो पैनल पड़ा था. हमारा जो बिजनेस होता है वो रोटेशन का बिजनेस है. Lot of you have to invest lot of money before getting the panel made. So मैंने कहा I will pay you in a month. He said okay, doesn't matter. And it was dispatched by the best courier. I don't remember the name of the courier, but it reached in 3 days at Bhilwara from Guwahati. You see the concern what we have. And the COSMA method I am talking about. What is COSMA actually and what we are doing in there. Second instance, और भी ताजुब की बात. हमने कोई CPWD के अंदर किसी ने, I don't want to take the name of that company because it doesn't look nice. They got their product approved, they got the panels made in their product. Now when the product came, CPWD requirement was ICS is equal to 100% ICU. Now that company didn't have that product. They just gave it, and when the inspector came, we thought that they must have done something and they must have accepted, the CPWD customer must have accepted it. So they have said. He rejected it. Now what to do? So then that time, again I flashed in WhatsApp group and there is a company from Bombay, RK Engineering. उन्होंने कहा मेरे पास मटीरियल, Mr. Niren bhai, RK Engineering. And you know how it came to me, that is, you will be astonished that what happened. बॉम्बे से भिलवाड़ा के लिए बस चलती है and that goes via the Vasai highway. So that fellow know what he did. उसके again in the same case, again I got it without money. मैंने कहा पेमेंट 7 दिन में दूंगा आपको, फर्स्ट वीक में दूंगा, इट वाज जून एंड. ये एग्रीड, कोई बात नहीं कर देंगे. वसई हाईवे पे हिज पर्सन हु हैड कम, उसने बस का पूरा कोऑर्डिनेट किया, वीडियो बस जो चलती है बॉम्बे से भिलवाड़ा, उसमें उसने वो सामान डलवाया और उसके बाद वो भिलवाड़ा नेक्स्ट डे पहुंचा. You can see nobody in world can give this kind of services what we people are giving to each other. आगे चलते हैं सर. तो this is for to work for mutual benefit and progress in technical as well as commercial aspects of it. Then to represent with government and other bodies the problems of trade. This we are already doing in a very big at COSMA Bombay and Karnataka level. Mr. Ramni is doing it, Engineer Ramni ji is doing it, then Anand Jaivan Saab, Ghazi Saab, yes, they are having regular meetings, dialogues with the MSE ministers and all those people, that how they can support, MSE can support all COSMA panel builders. To interact with similar associations and Chamber of Commerce on subjects of common interest. So here I would like to say that it is a very interesting thing that today we are having one-to-one dialogue with EMA and you name it, CII, all these people, we are having regular dialogue, all these people, they are having regular dialogue, and now everybody in India, all the associations, they know what is COSMA. Even the Solar Association of all India, solar pair projects, they are also going hand in hand with us, shoulder to shoulder with us. To do seminar, vital information to members through circular and seminars. This is already, it is coming, and I think
in the Cosma Rajasthan WhatsApp group. Everything, whatever is coming in our main Cosma business group, Cosma Business 2, Cosma Business group, the same thing is immediately flared either by me or by Mr. Jaivan or anybody. Everybody is responsible. Everybody is taking equal interest in building up Cosma. To strive to achieve removal of all acknowledged grievance affecting the industry's interest. Right? So this is the board of directors. Shri Satish Kazi, Shri Sanjeev Kinawar, Shri Chetan Daria. Chetan Daria ji recently, how enthusiastic a person can be. Chetan Daria ji had to visit Udaipur. So he had to come to Pyrotech. So यार अपन कैसे मिलेंगे यार, आप कैसे आओगे, कैसे करेंगे, अपन मिल जाएगा मीट. So that time he came to Udaipur. He visited P.S. Talesra ji, Pyrotech का पूरा हो गया, and then he gave me all the remarks like it's a beautiful industry, this, that, everything he told about Pyrotech. Then Shri Sudhir Harmante, Shri Ragesh Chetiyar, we are fortunate that many of them, Shri Anand Jayavan and Shri M. Ramani. So we are fortunate that 4 people are already here from them. These are our past presidents. I am fortunate that both of them, since I am member of Cosma, I don't know, I think since 1990s or so. And in one Pragati Maidan, there was an exhibition of IMA where these people had come from Bombay. There, hand to hand, I became their member. And that day we had a meeting with Mr. K.C. Agarwal. We had dinner with all of us. We were at least, I think, 20-25 Cosma members. Mr. K.C. Agarwal, he used to work in Havells earlier, and then he left Havells and he wrote a book, Electrical Engineering, Panel Manufacturing, etc. Encyclopedia. It's such a thick book. He gave everybody complimentary that book. It is still lying with me. This is what is Cosma, again I tell you. So we at Cosma organize technical seminars jointly with manufacturers of switchgear, other products on a regular basis. This helps members to gain technical knowledge and also interact with manufacturers and among themselves. Training programs, factory visits and workshops in technical and design engineering, quality assurance for members. Biannual award functions to recognize and honor eminent persons from electrical industry for their outstanding contributions. So technical seminars, I am telling you, in the COVID time, कुछ पता ही नहीं लगा हमको कैसे COVID time निकल गया. Every day, every second day, every third day, we used to have technical seminars from Socomac, from Almeasure, from any other company, you name it, and it was there. The Select LDJ, Select Samir Kazi was there. Then Farooq Merchant from Massibus, he was there. So that way, every second day, every third day, we used to have, and every Sunday, of course, it was compulsory. Every Sunday we used to have a seminar of 1 hour, 2 hours. Cosma, just as I told you, that we go shoulder to shoulder with IMA and Electrama. Cosma publishes a special edition for Cosma News at every Electrama and sends to its members and electrical fraternity on complimentary basis. At present, large number of copies are circulated with readership over 10,000. Cosma is also associated, as I told you earlier, with events organized by IMA, IMC, FICCI, CII, IGBC, BIA, BMA, EMA and ECAM. Cosma has plans to organize soft skills, human training, management and ISO workshops and other activities in course of time. अभी आप देख रहे होंगे, lot of skill development के लिए we are arranging classes and it is on a very economic, these things 7,000-8,000 rupees, man. Like our children are growing up, they can get used to, they can be educated by these skill development courses and all. So this is all about Cosma networking website with lots of information on networking, technical and all the helps in inviting panel builders. This is our Ramani ji. This is again, it's a coincidence that I happen to be in Bangalore
around a month back, and I just saw, like CEO of Secure Meters. He was there in Bangalore, and he was there in our Cosma meetings. So that time I tapped, and I talked to Mr. Ramani. Ramani said, yes, abhi baat kar lete hain. We talked to Mr. Singhvi. Immediately he said, बताओ यार क्या करना है? मैंने कहा हमको एक स्पॉन्सर करना है आपकी ये प्रोग्राम कॉस्मा में, हमको उदयपुर में एक प्रोग्राम करना है सिक्योर मीटर्स में, और सिक्योर मीटर्स फैक्ट्री विजिट वगैरह सब हमारे कॉस्मा मीटर्स को फाइनल बिजनेस में. He immediately agreed to it. Then we talked to him for membership also, petrol membership. तो क्या करना है? And within 7 days they were so aggressive, I tell you. यहाँ अपने कॉस्मा पैनल बिल्डर्स को तो I am requesting so many times, but I didn't have to request any time. It was he who was doing it. So that is what, when Secure Meters is thinking so much, so big about us, why not we people? Let us also all come forward. I appeal everybody, and I request all of you to make 3-4 members. आपको तो बनना ही है. Apart from that, in your cities, everywhere from where you are coming, you have come from Jodhpur, you have come from Jaipur, Bhiwadi, Alwar, Kota, Bhilwara, Udaipur of course is there. So I request all of you to make at least 5 members per member. Then it shall be there. हमको लगेगा कि आज की हमारी तरफ से सफल हुई. Thank you so much, and I now request Kazi sir to give us some words and blessings. Thank you so much. I see some gaps in the sitting positions, but as Sanjeev has said, next time when we come to Udaipur for a similar program, I am sure this hall will be overflowing, and that's what we all wish. Sanjeev has really done a very good job of describing Cosma from its birth in 1988. I'll only tell you a very brief story in the background. I was an avid Rotarian in 1988. Some of you must be Rotarians or Lions or things like that. Rotary was founded by 4 friends, something like that. So I invited 3 of my friends whose names were here. Unfortunately, out of 4, only 2 of us are left now. And one evening we met in the office, late in the evening at about 6:30 or something. Everybody finished that day and came. And I didn't tell them the purpose why I was calling them. I only told them, let's have a cup of tea. I knew them very well. They came, then we had some exchange of friendly words, talked about business, how is it likely to grow. And then I put this proposal. I said every time, one of them was my, so to say, competitor. So I said every time I meet, I feel that little animosity against you. And out of 10, you took away 7 of my orders. So क्या करूँ? आप बोलो. Whatever, this is my thought. Let's form an association. I'm not saying we'll make a cartel, but when you take away the order from me, or vice versa, I should not feel animosity. I should not feel hurt here. कि वो ले गया. So that is how these 4 friends on 1st April 1988, as Sanjeev said, and initially we said we'll make control panels manufacturers association. I said no. Switchgear is a part of control panel. So are meters, so are wires, accessories. So we broadened the base and we called it as control panel and switchgear manufacturers association. Luckily, that long name could be shortened into Cosma, and it has become so popular. There are many people who don't know the full name of Cosma. Even our bank doesn't know. If you write a check with Cosma, they accept it. That's how Cosma is today. As Sanjeev said, we have members from Assam, North, Haryana, Kerala, and of course we are in Western India. Communication is very good.
there is a desire to help each other. There is a desire to learn from each other. You know that panel manufacturing biggest hurdle today is IC 4629. So many people, I mean 61429, many people have difficulty in getting that certification. People from within COSMA are supporting each other, helping each other to get that certification. So that is the level of brotherhood we have achieved in the last 34 years. Sanjeev said number of programs are done by COSMA, particularly for the benefit of members. All those programs are uploaded on YouTube by Mr. Anand and Mr. Ramesh. They call it COSMA Cluster. You can go to YouTube, look for COSMA Cluster. There are I think 34 of them so far. Yes, 34. 30? 32 it was there, but now it is 34, but 2 has to be uploaded. Yeah. And that is in only 1 year. But That particular total, one single year we have uploaded 32. even if you miss one program, you can go back to YouTube and listen to that. COSMA Cluster is the channel. COSMA Cluster in is the channel. entirety, because it is loaded on YouTube, and you don't know that YouTube is not erased, it's permanent. The last thing I want to tell my friends here, Sanjeev has appealed, each one bring 5. I am a Bania, so my appeal is each one bring 10. Thank you very much. Sarita sir, Chairman, Connectwell Group of Industries, to say a few words. A big namaskar. And thank you, Rajasthan. Thanks to Sanjeev ji and Talis Rasna. COSMA has got opportunity to come to a great company like Secure Meters. Manish ji, to start with, instead of talking about COSMA, I would say thank you so much for taking care of us, showing us around. Believe me, I left my college 51 years ago, but today is a great lesson I'm going back to. Believe me, all good things I love to implement in our manufacturing systems. This is something we are proud. I was telling Sanjeev Bhai and Taleswar sir that today's visit is making me proud to say that this is happening in India. That's it. We are in Bombay, sir, we did not know. So this is the benefit of COSMA, my dear friends. Yes. This is the benefit of COSMA. Everybody has said all good things about COSMA. Sanjeev ji to बताया कि आसाम से शॉर्टेज पूरी हो गई, आरके इंजीनियरिंग ने शॉर्टेज पूरी कर दी, लाखों के पैनल्स निकल गए. What else do you want? So, I mean, the great Satish Bhai, 1988. I think some of the members were, I don't know, born or not. Couple of maybe. So the whole idea is this brotherhood has to come. Unfortunately, this brotherhood, this characteristic, somehow we are never excited to get into that. But trust me, this brotherhood helps a lot. मैं तो एक बोलूँगा example कि मैं तो component बनाने वाला हूँ Connectwell. Everything is there to gain from becoming a member of COSMA. To know their requirements, to know their standards. And now recently all those Zoom seminars that were conducted, the whole idea of coming together is to create control panel manufacturers who would make COSMA way. When you are a COSMA member, the customer will come to you, okay, he is a COSMA member, so they must be following certain practices. So this is the whole idea of spreading this message. So, of course, I won't take more time. I mean, everybody has spoken so nice about COSMA. So thank you very much, my friends here. I'm really thrilled. I'm good. I'm like Satish Bhai, it was a very good thing that I accepted to come with you. Thank you. So thank you all. Thank you so much. So I'm not going to tell you COSMA ने क्या किया. So I am the vision. I am going to tell you COSMA what COSMA is going to do. एक साल में हम लोग क्या किया, 10 सक्सेस स्टोरी बनाया. तो 10 सक्सेस स्टोरी जो बनाया उसमें हर एक
लोग ने पूरा जो लाइव डाला है, कनेक्ट वेल साहब ने जो लाइव डाला है, उनका पूरा स्टोरीज हम लोग बनाया, वो अपलोड किया, वो सब अपना वेबसाइट पे है। अब उसका एक बुक बनाने जाने वाले हैं और दैट बुक विल बी पब्लिश्ड इन 12 नवंबर। हमारा एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रहता है बाय ईयरली, तो इसमें जो हिंदी में बातें कहते हैं नामचीन लोग रहते हैं, परफेक्ट, तो नामचीन लोगों का प्राइस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉस्मा में से। तो वो जो अलग अलग टाइप के प्राइसेस है, वो सब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है 12 नवंबर। तो मैं आपको डेट बता के रखता हूँ, दैट यू पुट दैट डेट इन योर कैलेंडर एंड एवरीबडी यू शुड कम टू बॉम्बे फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द व्हाट होने जा रहा है। इसके अलावा आई एम टॉकिंग अबाउट विजन। विजन इज वेरी बिग अबाउट द कॉस्मा। कॉस्मा इज नॉट ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन है, बट वी आर वर्किंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑफ कॉस्मा मेंबर्स। लास्ट में क्या हम लोग सब बिजनेस में है, तो बिजनेस ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो मैं आपको 2-5 मिनट में बता देता हूँ। वी आर हैविंग वन एक्सपोर्टर्स ग्रुप, वी आर फॉर्म। अभी तक वो इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन उसका मैं पूरा असेंबली कर रहा हूँ। जो लोग एक्सपोर्ट्स में इंटरेस्टेड है वो लोग को इकट्ठा कर रहा हूँ, जिसके पास सी सर्टिफिकेशन है, यूएल सर्टिफिकेशन है, उनको इकट्ठा कर रहा हूँ। एंड वी आर मेकिंग अ क्लस्टर ऑफ द मेंबर्स एंड प्रेजेंटिंग आउट ऑफ इंडिया एज अ क्लस्टर। स्वीडन के लोग करते हैं, स्विट्जरलैंड के लोग करते हैं, चाइनीज लोग करते हैं, व्हाई नॉट इंडिया। तो एक बुक रहेगा, उसमें देयर विल बी अ क्लस्टर ऑफ कंट्रोल पैनल स्विचगेयर मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम इंडिया। उसका एक ब्रांड रहेगा, ये ब्रांड आप ले लो, ये ब्रांड में सब कुछ है इलेक्ट्रिकल का। तो सेम वे दिस ब्रांड विल बी पब्लिश्ड इन ऑल परचेसेस इन PSUs। सब परचेस वाले देखेंगे, चलो ये पर्टिकुलर ये पैम्पलेट ले लो, इसमें सब कुछ मिलेगा। दैट वी आर गोइंग टू डू। उसके अलावा वेबसाइट वी आर पब्लिशिंग टू ऑल PSUs। उधर से जो सिलेक्ट करना है, हमारे पास एक वेबसाइट है, कॉस्मा का वेबसाइट है। कॉस्मा का वेबसाइट में सबका नाम है, हर एक मेंबर का नाम है, और मेंबर के नीचे उसका वीडियो है, उसका लिंक्डइन है, उसका मेल आईडी है। तो जो परचेस वाला चाहिए उधर जाके, जो सेग्रीगेशन किया हुआ है, PCC वाला कौन है, ऑटोमेशन वाला कौन है, APM MC वाला, सबका लिखा हुआ है, तो उसमें जाके आप वो लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं। इट इज फॉर द बिजनेस। इसके अलावा now I am working for 6 months on digital marketing. So we are making one digital platform and we are giving it to the needy who want to have their e-commerce website, who want to have their apps, who want to have their multi-mailing software, who want YouTube uploading. सबके पास नॉलेज नहीं रहता है, तो we are supporting for that. So I am working for that also. इसके अलावा जो सर्टिफिकेशंस है, वो सर्टिफिकेशन के लिए हम लोग मदद करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बढ़े। उसके अलावा वी आर हैविंग वन क्वालिटी पैनल। वो क्वालिटी पैनल वेरी हार्ड वे में क्वालिटी का काम कर रहा है। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी हम लोग वी आर मेकिंग वन बेसिक क्वालिटी लेवल। वी आर मेकिंग वन बेसिक क्वालिटी लेवल। उसका एक हम लोग मैन्युअल बनाने जा रहे हैं, सब मेंबर्स को सर्कुलेट कर रहे हैं। यू हैव टू फॉलो दिस बेसिक लेवल। सो व्हेनेवर योर कंसल्टेंट कम्स टू योर फैक्ट्री, उनको बोलेगा मैं कॉस्मा मेंबर हूँ, दिस इज आवर बेसिक लेवल। इसके आगे आप जो बोलने का आपको देखने का देखिए, उतना अपना प्रेस्टीज हम लोग बना रहे हैं। दिस प्रेस्टीज इज इंपॉर्टेंट। तो कॉस्मा मेंबर का एक दबदबा होना चाहिए, ये कॉस्मा मेंबर है, जरा संभाल के जाओ है। कंसल्टेंट के पास भी दबदबा होना चाहिए। तो ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाट इज कॉस्मा मेंबर? अपना कंट्रोल पैनल वाला क्या है? कंट्रोल पैनल इज अ कोर। अपने पास इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, अपने पास केमिकल इंडस्ट्री है, अपने पास फार्मास्यूटिकल्स है, अपना डिफेंस है, अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने पास फूड इंडस्ट्री है। ये सब इंडस्ट्री के सेंटर में, कोर में कौन है? व्हाई दे आर, हाउ दे आर रनिंग? कोर में, उससे कोर में है कंट्रोल पैनल जो हार्ड है इंडस्ट्री का। ये कंट्रोल पैनल के सिवा कुछ नहीं चलता है। Control panel is a aggregator, or you can say it's the main part connecting switchgears, accessories, then cabling and installation, and they make that factory run. If the control panel is not there, that factory will not run. So control panel is the main thing, but do we get the same respect? जितना अपना कैपेसिटी है, जितना अपना उसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता है? So we are here to get the respect first. कॉस्मा मेंबर्स को, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल मेंबर्स को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। आई ऑलवेज वर्क फॉर द रिस्पेक्ट। हम इसके पास जाने वाले नहीं है। द पीपल शुड से, अरे कंट्रोल पैनल वाला है, यू शुड गिव रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट के लिए मैं काम करता हूँ। इसके लिए पहला सब लोग इकट्ठा आएंगे, 2500
कंट्रोल पैनल मैन्युफैक्चर है इंडिया में, और ऑटोमेशन के कंट्रोल पैनल बना रहे 5000 है। जो इंडस्ट्री ये जो स्पेशल पर्पज मशीनरीज है, ऑटोमेशन मशीनरीज, उसमें भी कंट्रोल पैनल बनते हैं, वो 10,000 है। तो 15,000 से 20,000 कंट्रोल पैनल मैन्युफैक्चर है, और हम लोग 500 की बात कर रहे हैं। तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक द मेंबर्स। अब ये मुझे बताना नहीं चाहिए सच बोलेगा तो कि मेंबर बन जाओ। बाकी सब जो लोग हैं, बाकी जो एसोसिएशंस है, दे गेट मनी पर ईयर। कॉस्मा इज द ओनली एसोसिएशन इन द इंडिया, दे गेट मनी only once throughout the life of your company, not you, life of the company. Only 15,000 rupees we get throughout the life of your company. इसके बाद में एक पैसा भी कभी भी लिया नहीं जाता है। We only give. There are lot of seminars in 5-star also. We don't take money. All other institutes take 1,000 दो, 2,000 दो, 4,000. We don't do that. We never take money. तो हर एक मेंबर को बिना बोले सब लोग आना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, वी डू लॉट ऑफ वर्क इन द बैकग्राउंड। और जो काम करते हैं हम लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। आज सैटरडे है, आज सैटरडे कॉस्मा का ऑफिस में द न्यू कंसेप्ट है स्टार्टेड कि हमारे आदमी को, कंपनी के आदमी लोग को ट्रेनिंग चालू करें अबाउट द कंट्रोल पैनल्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। आज चालू हो गया, 6 महीने का ट्रेनिंग चालू हो गया है। ईच सैटरडे इट विल बी देयर। तो पहले कैसा होता था कि सेमिनार खाली बॉम्बे में, बेंगलोर में होते थे। नाउ ये कोरोना की वजह से क्या हो गया है, इट हैज बिकम गुड ऑल ओवर इंडिया। आसाम के लोग बोलते थे हमारे लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आसाम से केरला जुड़ गया पूरा। नाउ दे आर टाइड टुगेदर लाइक एनीथिंग। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारा वाइस चेयरमैन जो है न्यू बॉम्बे का, बोलते सर जिधर पेन है ना उधर अटैक करो। व्हाट इज द पेन? मैं बोला पेन इज द पेमेंट, सबका पेन इज द पेमेंट। अभी पेमेंट का बात करेंगे हम लोग, तो प्रॉब्लम कैसा है कि देखो हम लोग जिधर से माल लेते हैं वो मल्टीनेशनल है, जिधर माल देते हैं वो मल्टीनेशनल है। ये इधर से दबाएंगे, इधर से दबाएंगे, आप किधर जाएंगे? दैट इज द प्रॉब्लम। तो उसके लिए उनसे बड़ा हम लोग होने चाहिए। तो ये मल्टीनेशनल का जितना टर्नओवर है ना, उससे अपना कॉस्मा का जो टोटल टर्नओवर है ज्यादा होना चाहिए। वी शुड बी बिगर देन मल्टीनेशनल। उसके लिए ज्यादा मेंबर होने चाहिए। That is the main thing, and we should be looked as a single identity, not as एक कंट्रोल पैनल वाला है। वो खाली वो जो कॉक्स रहते उसका झूल लगाते वैसे लगाते बैठे। तू अंदर आ रहे, तुम्हारा क्या कोटेशन है, आजा बाहर। तू आ रहे, तेरा क्या कोटेशन, इसका दो, उसका दो, उसका दो। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो बाहर जो बैठे हुए कोच के लोग हैं, सब लोग एक होने चाहिए। 30% के नीचे नहीं जाने का, पहले डिसाइड करो और प्रेशराइज करो। पेमेंट टर्म्स, वो 1 महीना देता है, आप कितना देते हैं? 1.5 महीना देता है। अरे तू 1.5 महीना, मैं 2 महीना देता है। अरे क्या है, ऐसा नहीं चलता है। यू शुड नॉट। अभी बाकी मशीनरी एसोसिएशन है आपके, शायद राजस्थान के, गुजरात के, आई डोंट नो, उनका एक ही है, पेमेंट टर्म्स इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, बस। बाकी कुछ भी करो, ये सब मुझे करना है। वी हैव टू बी वेरी फोर्सफुल, वी हैव टू बी वेरी डायनेमिक अबाउट व्हाट वी से। और ये कभी हो जाएगा, आप उधर बैठे, वो उधर बैठा, वो उधर बैठा, नहीं होगा। अब पहले हम लोग सब इकट्ठा होने चाहिए। दैट इज व्हाट इज ब्रदरहुड। ब्रदर बनो। अगर ब्रदर अगर साथ में रहेंगे तो कौन ब्रदर को तोड़ेगा? ये मेन थिंग है। दैट इज व्हाट वो कॉस्मा खाली इसके लिए। पहले इकट्ठा हो जाओ। एक आदमी ने मुझे पूछा, सर कॉस्मा हमको क्या देता है? इज इट द राइट क्वेश्चन? ये क्या पूछने का तरीका है? So I don't like this type of person. I am forceful to tell you that you have to be a member today. Only each and every person over here fill up the form and give it to Rasa. That's all. This is my lecture. Fine. Now I request Secure to come on the dais and start giving their presentation. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for being here. We are so pleased to have you here and to have the motivating lectures from you. My name is Rajesh Nemale, and I am going to present a glimpse about secure meters, what we do, and how we can synergize with the panels, and as rightly said, for building the electrical industry in the country.
कहीं भी कोई बड़ी सी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन होता है तो फैक्ट्री नहीं दिखाई जाती है। हर समय आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उद्घाटन होता है उस पैनल पर होता है, उस पैनल पर ही स्वास्तिक बनता है, मालाएं आती है और बटन दबता है और काम चालू हो जाता है। ये तो उद्घाटन की बात है। उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो जाते हैं अपने घर से एक सफेद कपड़ा लेकर के जाते हैं, पैनल को साफ करते हैं, वो मानते हैं कि हमारी रोजी रोटी है ये, और ये भावना के साथ में लोग काम करते रहते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ व्हाट यू गाइस डू। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी sanitizing secure meters. So I'll be just taking 40-45 minutes, no more than that. और मैं जो बताना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी कई बार एक जैसी चलती है। हम लोग की मीटरिंग इंडस्ट्री में भी जो चालू हुआ था, ऑटोमेशन चालू हुआ था। एंड ऑटोमेशन बेसिकली हम लोग 3 जगह अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ऑटोमेशन में हमारी जरूरत पड़ती है क्योंकि नाउ द डेटा कम्स ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, kilowatt hour, kVAR, voltage, currents. The same is needed for factory automation and the same is needed for substation automation. पर इन तीनों डोमेन में काफी बड़े चेंजेस आते जा रहे हैं और ये चेंजेस इतने सटल हैं कि अपन अगर इनके साथ में नहीं है so we might be left behind. So basically there are 3 things: electromechanical part of it, the electrical part of it, and what's happening is कि जो मेजरमेंट है वो सब इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्क बेस्ड होते जा रहे हैं। सो एक काफी बड़ा बदलाव आ रहा है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स की जो अप्रोच है उसमें। एक एग्जांपल है सर, आपके लेफ्ट साइड में एक सर्किट डायग्राम है एक सब स्टेशन का, बहुत सारे देखेंगे आप लोग ने, ओवर करंट, अंडर करंट, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ये सब इम्प्लीमेंट होते हैं ट्रेडिशनल बिल्डिंग ब्लॉक से। आप जो बीच में देख रहे हैं 2 लाइन्स के बीच में, ये डिजिटल सब स्टेशन है। यहाँ पर ये होता है कि जो सीटी और पीटी के जो तार आते हैं ये पहले डिवाइस में आकर के खत्म हो जाते हैं और वहाँ से जो सिग्नल चलते हैं वो अपना इथरनेट का सिग्नल चलता है, राइट? सो इट इज अ मिनी इंटरनेट दैट इज गोइंग टू रिप्लेस द सबस्टेशन। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? आज के दिन अगर अपन देखेंगे पावर ग्रिड के, एनटीपीसी के सबस्टेशंस काफ़ी तेजी से इस प्लेटफॉर्म पर जाते जा रहे हैं। उसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं, ये सब भी तेजी से कंप्रेस होते जा रहे हैं इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर। और ये सब पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि राइट साइड में जो बना हुआ है कि जो डिवाइसेस हैं आजकल के, ये वोल्टेज करंट में बात नहीं करते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी में बात करते हैं प्रोटोकॉल्स के फॉर्म में, लाइक मॉडबस प्रोटोकॉल, IEC 61850, प्रोफिबस, बैकनेट, एमबस, तो खूब सारे प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं। अगर अपन गिनती गिने तो करीबन 200 से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं जो कि अपने कंट्रोल इंडस्ट्री में मतलब प्रिवेलेंट हैं। और एक बात का अपन को ध्यान रखना है कि जो चेंज आ रहा है वो चेंज इस तरह से आ रहा है कि आजकल जो बायर है वो ये उम्मीद करता है कि मेरा सर्किट डायग्राम दे दूँ, आप बना दीजिए। दैट वाज एन ओल्ड अप्रोच, नाउ इट इज मोर लाइक अ कोलैबोरेशन अप्रोच। दिस इज द प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व एंड देयर आर 5 people who are going to provide their equipments. Let us build that orchestra. So this is the change that is coming up. Now I am really taking you through the journey of secure meters. So आपके लेफ्ट साइड में जो छोटा सा नीचे काला डब्बा है, 1987 में सिक्योर मीटर वी गॉट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूके और हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर बनाया था। वो जो पहला मीटर था इंडिया में जब बनाया तो मुश्किल से 2 हफ्ते चल पाया था। वो इंडिया की पावर से, इंडिया की जो गर्मी है, इलेक्ट्रिकल नॉइस है, वो बिल्कुल झेल नहीं पाया और हम लोग वापस ड्राइंग बोर्ड पर थे। करीबन 2 साल तक हमने उसको रोबस्ट बनाया कि इंडियन पावर सिस्टम में काम करे एंड देन इट वाज लॉन्च्ड। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सिक्योर मीटर वाज कि हमारे प्रोडक्ट बिजली बोर्ड को बिजली की चोरी पकड़ने में हेल्प करते थे। पिछले जो 4 साल में हम लोग का जो टर्नओवर था हर साल डबल होता गया एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग्स। एंड आप ये जो देख रहे हैं प्रोडक्ट की जर्नी है, तो हम लोग एक के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च करते गए और करीबन हर एक साल में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स थे हम लोग के लाइफ में, हम लोगों ने सन 2000 में नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए एक प्री पेमेंट सिस्टम बनाया था और वो उनको इतना पसंद आया कि जब
उस सिस्टम को 14 साल हो गए, उस सिस्टम की जब लाइफ खत्म हो गई तो वापस नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग आए, बोले हमको वही वाला मीटर फिर से चाहिए। अब टेक्नोलॉजी में वो मीटर को वापस ला नहीं सकते क्योंकि उसके कंपोनेंट्स भी नहीं मिलते हैं, रादर उसके 5 गुना ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्ट था। बट दैट इज अ टेस्टिमनी दैट पीपल लाइक इट। सो वी हैव अ लॉन्ग जर्नी और प्रोडक्ट से हम लोग अब सिस्टम की तरफ चले गए हैं। बेसिकली हम लोग जो सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स वो अधिकतर बिजली बोर्ड के लिए या गवर्नमेंट यूटिलिटीज के लिए होते हैं। वी सप्लाई टू 60 कंट्रीज एंड द थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट और बिजली बोर्ड की याददाश्त बहुत तेज होती है। हम लोग अगर एक बार गलती कर दें तो हम लोग अगले बार वहां जा नहीं सकते। सो दैट इज फोर्स्ड अस कि वी नीड टू रियली वर्क ऑन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज अबाउट क्वालिटी एक्सटेंडेड फॉर 10 years इज रिलायबिलिटी। सो देन वी स्टार्टेड लर्निंग कि क्या चाहिए रिलायबिलिटी के लिए। बहुत सारी जगह हमने सर्च करी, हमने देखा कि मिलिट्री क्या यूज़ करती है, क्या स्टैंडर्ड यूज़ करती है। और इंडिया में थैंकफुली हम लोग IIT खड़गपुर से एक प्रोफेसर मिल गए थे जिन्होंने काफ़ी मदद करी हमारी, और हम लोग दोनों ने मिलकर के काफ़ी अच्छी सैलरी क्रिएट करी थी रिलायबिलिटी के लिए। सो हम लोग के करीबन 6 करोड़ मीटर वर्ल्ड वाइड में सप्लाई किए हुए हैं। और हम लोग बोलते दुनिया को कि अगर आपको चाइना से सस्ते प्रोडक्ट मिल सकते हैं तो आपको इंडिया से रिलायबिलिटी वाले प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो इंडिया की स्ट्रेंथ रिलायबिलिटी है और दुनिया मानती भी है कि इंडियंस रोबस्टनेस की तरफ ध्यान देते हैं। आई थिंक वी शुड रियली लेवरेज दैट। क्यों एक अगर आप ऊपर से देखेंगे बर्ड्स आई व्यू से, सो हमारी जो प्रेजेंस है वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड में प्रेजेंस है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड इसलिए क्योंकि जहाँ पर भी IC स्टैंडर्ड चलते हैं हमारे प्रोडक्ट दिखते हैं। हम लोग ANSI वाले मीटर नहीं बनाते हैं। ANSI मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड्स वाले मीटर। जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है स्मार्ट मीटरिंग का ट्रेंड चल रहा है। मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ी सी ग्लिम्स बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ पर क्या काम कर रहे थे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि नॉर्दर्न आयरलैंड में हमने प्री पेमेंट मीटरिंग 99 में बनाई थी। सो हम लोग करीबन समय से 12 साल आगे चल रहे थे। इनको पहला एक प्रोजेक्ट बना करके दिया एंड दे वर वेरी मच प्लीज्ड। एक और वाकया याद आता है इनके साथ में कि देखिए मीटर हर घर में लगता है और हमने जो मीटर बनाया था 2000 में 99 में, तो मीटर के अंदर प्रोविजंस छोड़ रखे थे कि मीटर पर अगर कोई चुंबक रखेगा तो मीटर उसको याद कर लेगा और मेक श्योर करेगा कि टेम्पर नहीं हो मीटर। जब ये फीचर हमने आयरलैंड को ऑफर करा 2000 में, तो उन्होंने बोला नहीं हमारे यहाँ के लोग काफ़ी शरीफ होते हैं, वो चोरी नहीं करते बिजली की। सो नाइस टू हियर दैट। तो आयरलैंड ने बोला कि उस यूटिलिटी ने बोला तो ये फीचर डालने में आपके प्रोडक्ट में से जो $2 लग रहा है आप कम कर दो उसको, आप वो पार्ट निकाल दो। हमने बोला सर हम लोग इसको रखना चाहेंगे, आप इसको कॉम्प्लीमेंट मानिए हमारी तरफ से। बात चलती रही, सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद इंटरनेट आ गया और 2006 में किसी बंदे ने छोटे छोटे मैग्नेट्स बेचना चालू कर दिया इंटरनेट पर और देखा इस चुंबक को आप मीटर के इस तरफ रख देंगे तो मीटर रुक जाएगा। तो हमारे जो कंपटीशन के जो प्रोडक्ट थे जो किसी और देश से आए थे उन सब के मीटर रुक गए और चलता हुआ था एक मीटर जो वो इंडिया का था। तो जो 2014 में जब कस्टमर आया वापस तो उसने बोला कि आपके उस फीचर ने हमारा काफ़ी बड़ा पैसा बचा दिया था। हमारी रियल में कीमत मीटर की नहीं होती है। रियल में जो कीमत होती है एक बंदे को भेज करके दीवार पर से मीटर निकालने की और लगाने की। सो समटाइम्स थिंग्स हेल्प्स अस। ये स्मार्ट मीटर्स हैं सर जो हमने यूके में सप्लाई करे हैं। करीबन 65 लाख 70 लाख मीटर यूके में लगे हुए हैं। गैस मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है और इन्हीं के कारण यूके की जो स्मार्ट ग्रिड है दैट इज बीइंग बिल्ड अप। यूके में हम लोग ने स्मार्ट मीटर दिए थे, IT सिस्टम्स दिए थे और हम लोग को 2015 में एक बेस्ट मीटर डेटा मैनेजमेंट अवार्ड मिला था। सो दैट ग्लिम्स फ्रॉम देम। इसके अलावा 2008 में हमने ऑस्ट्रेलिया में स्मार्ट मीटर सप्लाई किए थे, करीबन 1.5 मिलियन स्मार्ट मीटर। पहला जो ऑर्डर था वो 1.5 लाख मीटर का था एंड आफ्टर डूइंग दैट ऑर्डर द कस्टमर सेड कि टेंडरिंग प्रोसेस में इतना लंबा क्यों जाए, हम लोग आगे का जो ऑर्डर है वो आगे ले लीजिए। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और अगर आप विक्टोरिया स्टेट है जहाँ पर मेलबर्न है
तो वहां पर हर दूसरे घर में आपको मेड इन उदयपुर या मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट दिखेगा। थैंक यू सर। उसी तरह से सिंगापुर पावर मतलब वहाँ की जो यूटिलिटी है, दे आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट। तो उनकी जो फेमस ऑर्चर्ड रोड है, तो ट्रैफिक लाइट के किनारे का भी डब्बा दिखेगा आपको, उसके अंदर से लाइट फ्लैश हो गई है। आप अंदर झाँकेंगे तो आपको अंदर दिख जाएगा, क्योंकि उस कंट्री में ज़्यादा धूल नहीं होती है, कांच के अंदर दिख जाता है। सो यू फाइंड अगेन आवर प्रोडक्ट। सो वी वर्क इन Synergy, मलेशिया में वी हैव अ बिग प्रेजेंस। टॉकिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो हम लोग के जो प्रोडक्ट होते हैं पूरे पिरामिड को कवर करते हैं। पिरामिड कहना कहूँ मैं तो जो टॉप ऑफ द रेंज मीटर होते हैं, जो कि ग्रिड मीटर कहलाते हैं, वो साल के सिर्फ 1000 बिकते हैं, क्योंकि इतने सारे ग्रिड बनते नहीं हैं। और अगर अपन बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात करें तो दीज आर स्मॉल मीटर्स जो कि सिंगल फेस कस्टमर्स पे लगते हैं। और इन दो रेंज के बीच में जो प्रोडक्ट आते हैं वो आते हैं जो आपके पैनल्स में लगते हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो पैनल में लगते हैं। देखा जाए तो हमारा नाम जो सिक्योर मीटर से एक तरह से बेस्ट नॉर्मल है। हम लोग मीटर के अलावा और भी चीजें बहुत सारी बनाते हैं। तो ये स्लाइड बताती है कि हम लोग कहाँ प्रोडक्ट, कहाँ पर प्रोसेस, कहाँ पर डेटा, हर तरह की सर्विसेज देते हैं कस्टमर को। और हम लोग का एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर भी है यहाँ पर, जहाँ पर पूरे दुनिया को हम लोग सेवाएं दे पाते हैं उससे। A glimpse of our workplaces और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। सो यहाँ पर मैं आप लोग का अटेंशन देना चाहूँगा कि जो टॉप ऊपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ सानंद है, इस रो में सबसे ऊपर राइट हैंड साइड टॉप में जो है फैसिलिटी, ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है। कभी आप लोग अहमदाबाद में हैं तो सानंद जरूर जाइए इसको देखने के लिए। सो ये ऐसे बनाया गया प्लांट की जो कि नेट जीरो की तरफ फोकस करता है। मैं चाहूँगा कि नेट जीरो बहुत बड़ा कमिटमेंट है जो पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज उसकी तरफ जा रही है। बहुत सारे नेशंस ने अपने आप को कमिट कर रखा है। लाइक यूके ने बोल रखा है कि मैं 2050 तक नेट जीरो हो जाऊंगा, और उस नेट जीरो अचीव करने के लिए उन लोग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। Can you repeat this again? Net zero. नेट जीरो मतलब नेट जीरो एक कमिटमेंट है कि मैं एज अ कंट्री फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, ये सब यूज नहीं करूंगा। मैं अल्टरनेट एनर्जी से पूरी इकोनॉमी और पूरी कंट्री चलाऊंगा। उन देशों के लिए जहाँ पर जो ठंडे देश हैं, उनके लिए इतना बड़ा कमिटमेंट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके जो घर होते हैं वो सब गैस से गर्म होते हैं। So they have taken a pledge कि by 2050 they will stop using anything जिससे कार्बन एमिशन होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान उनको अपने घर की हर चीजें बदलनी पड़ेगी। उनके पावर प्लांट चेंज होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चेंज होंगे, इसलिए उनको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स खर्च होंगे। तो सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोग के एसोसिएशन को कि इस नेट जीरो के बारे में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको जरूर टैप करके रखें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी नेट जीरो के कारण। एक सिंपल सा एग्जांपल है, इंग्लैंड में एक केबल बेचने वाला केबल सप्लाई कर रहा था कल तक वो, जब उसने देखा कि गवर्नमेंट नेट जीरो पर जा रही है, इंडस्ट्री नेट जीरो पर जा रही है, उसने अपनी ब्रांडिंग चेंज कर दी। उसने बोला आप मेरी केबल यूज करिए, ये आपको नेट जीरो में हेल्प करेगा। ये कैसे करेगा? नहीं, इसके अंदर में लॉसेस कम होंगे तो आपकी एनर्जी कम लगेगी और मैं भी आपके लिए भागीदार बन गया हूँ। तो जो इतनी सरल सी चीज को अपने आप के लिए प्रोजेक्ट करते हैं कि वो नेट जीरो का काम कर रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग जो करेंगे दैट विल बी फार मोर सिग्निफिकेंट। सम ग्लिम्पसेस ऑफ आवर प्लांट, क्योंकि हम लोग को कस्टमर को प्रॉमिस देना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये 10 साल चलेगा, 10 साल सेवाएं देगा, आपको इन 10 साल में प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है हमारे प्रोडक्ट की, आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से कम पड़ेगी। और ये अचीव करने के लिए हमको जो भी प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट्स लगते हैं, कभी कभी हमको पार्टनर्स नहीं मिल पाते हैं जो हमको हमारी लाइफ क्वालिटी दे पाए। सो वी हैव आवर इन हाउस मोल्डिंग प्लांट्स, और जो भी फॉरवर्ड जो भी इंटीग्रेशन की चीजें हैं लाइक सीटीज बनाना, सो वी हैव टू डू दैट सो दैट वी कैन कीप द प्रॉमिस व्हाट वी गिव टू द कस्टमर्स। So these facilities you are running for emergency or like? Oh yeah, these are our continuous base load facilities. तो हम लोग कई टन प्लास्टिक के बोल्डेड पार्ट्स बनाते हैं, मीटर के कवर बनाते हैं,
कई टन कॉपर लेकर के सीटीज बनाते हैं। नहीं, मैं यही पूछ रहा था आपसे जी जी कि normally you are getting it made from outside and only in emergency you are using your facilities or Yes. how it is like? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। सो आई लाइक टू क्वालिफाई कि वी गिव द फर्स्ट प्रेफरेंस कि हमको कोई सप्लायर मिल जाए जो कंसिस्टेंट क्वालिटी दे पाए हमको। सो हमको जनरली सप्लायर नहीं मिलते हैं क्योंकि हमारा मार्केट जो है या इंडिया का मार्केट है, हर एक का सब सामान बिकता है, सबके खरीदार मिल जाते हैं। तो इससे हमको लगता है कि जब सामान बिक रहा है तो हम क्वालिटी के हर्डल्स क्यों पार करें, राइट? सो व्हाट सिक्योर मीटर डज इट, हम लोग अपने क्वालिटी इंजीनियर्स भेजते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि आप इस लेवल तक आ जाइए, क्वालिटी प्रोसेस, क्वालिटी सिस्टम ले करते हैं। पर जब हम लोग को नहीं मिल पाता है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट वी स्टार्ट डूइंग दैट जॉब इन होम। सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बिल्ड पीपल, और फिर हमने ग्रेड कर रखा है कि कौन से लेवल 1 सप्लायर्स रहेंगे। लेवल 1 सप्लायर्स वो रहेंगे जिनका हम माल ले लेंगे और सीधे हम अपने प्रोडक्शन लाइन पर उनको यूज कर सकते हैं। लेवल 2 में हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, राइट? सो दैट इंक्रीजेस आवर साइकिल टाइम। सो दैट इज अबाउट हाउ वी डू। अब ये सिस्टम हम लोगों ने इंडिया में बना रखा है। हम लोग को अपने प्रोडक्ट्स ओवरसीज भी बेचने हैं, एंड व्हेन सेलिंग टू ओवरसीज कस्टमर्स वी नीड टू रियली serve our customers in the best way what they want. Like मलेशिया में अगर आपको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो मलेशियन गवर्नमेंट बोलती है आपको भूमिपुत्रा होना चाहिए। There's a very some Indian word, भूमिपुत्रा। So भूमिपुत्रा एक मलेशियन वर्ड एक्चुअली, अपन को लगेगा कि संस्कृत वर्ड है, पर मलेशिया की भाषा है भूमिपुत्रा। सो एक भूमि का पुत्र होना चाहिए जिसकी अगर कंपनी है तो ही आप बिजली बोर्ड में सप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो पार्टनर है हमारे, ये भूमिपुत्रा है, और हम लोग का इनके साथ में जो पार्टनरशिप है 2005 से चल रही है। इन लोगों को हमने ये पूरा प्लांट, प्रोसेस, कंपोनेंट्स, इंजीनियर्स की ट्रेनिंग सब कुछ दी है। तो ये प्रोडक्ट बना करके बेचते हैं, उस पर लिखा रहता है सिक्योर, और आगे तरफ लिखा रहता है क्रेजिक, जो कि इनका ब्रांड है। तो टेक्नोलॉजी के साथ में चैलेंज क्या रहता है सर कि टेक्नोलॉजी हर समय अपग्रेड होती रहती है। हर 2 साल में आपको एक नया प्रोडक्ट चाहिए, और वो सब चीज़ें छोटी कंपनीज नहीं कर पाती है। तो इसलिए एक डेवलपमेंट हाउस है हमारा, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, जहाँ पर हम लोग इनोवेशंस करते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं। उसी तरह से घाना में अल्फा पावर करके है, आप देखेंगे ये प्लांट है, एंड वी हैव द लोकल्स हु आर वर्किंग ऑन इट। सो इस बहाने हम लोग को हमारे इंजीनियर्स को वहाँ भेजने का मौका मिलता है, उनको ट्रेन करने का मौका मिलता है, साइकिल समझने का मौका मिलता है कि हाउ थिंग्स वर्क। एंड हम लोग भी अगर आप लोगों को पता नहीं मौका मिला कि नहीं मिला, एक प्रोसेस होता है हमारा, उसको बोलते हैं मल्टी एनवायरमेंट ओवर स्ट्रेस टेस्टिंग, MEOST। देखिए कोई कस्टमर बोलता है कि आपका प्रोडक्ट 10 साल चलेगा, इसकी क्या गारंटी है? सबसे इजी गारंटी तो क्या है कि हम प्रोडक्ट बना दें और उसको 10 साल तक चलाएं, फिर हम लॉन्च करें। हाँ सर, ये 10 साल चला था इसलिए हम बोलते 10 साल और चल सकता है ये, बट दैट इज नॉट एफिशिएंट। सो व्हाट वी डू इज वी हैव अ प्रोसेस बाय व्हिच वी एज द प्रोडक्ट इन अ शॉर्ट टाइम, एंड दैट एजिंग इज इक्विवेलेंट टू द लाइफ ऑफ 10 years. So that is what we wanted to share कि we do a lot of reliability testing just to make sure कि customers के यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फेल नहीं हो। Moving forward, I'm zooming into our product range. So we have the envelope panel meters and worth sharing. कोई भी पैनल हो, कस्टमर बोलता है कि मेरे को एनवेलप पैनल मीटर तो चाहिए, क्योंकि मेरे को जो स्टार्टअप करना है अगर जब मेरे ऑक्सिलरीज नहीं है, so there is nothing which can replace the envelope panel meter. तो हम लोग क्या शर्त लगती है कि एनवेलप पैनल मीटर्स 100 साल और चलने वाले हैं। These are going to live, and that is why we should invest in the technologies to make it more robust. These are the position indicators available in all sizes. Current transformers. This is the low voltage transformers. The panel products which all on a single screen. इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पैनल मीटर्स भी बनाते हैं, एंड इनके साथ में जो ब्यूटी है वो ये है कि जो ट्रेंड आ चुका है आजकल का, वो ये है कि on a panel people they want to see the display at the same time they also want whatever is happening it should be available at a remote terminal.
सो उनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पढ़ करके कहीं डेटा भेज सके, लाइक मॉडबस पर या कोई और कम्युनिकेशन चैनल्स पर डेटा भेज पाए। सो हमारे अधिकतर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कम्युनिकेटिव टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड देन व्हाट वी आल्सो डू इज कि वी आर कंटिन्यूसली इनोवेटिंग। सो अगर आप राइट साइड के ऊपर देख रहे हैं, सो हमारे प्रोडक्ट में आपको टर्मिनल्स वाले मीटर भी मिल जाएंगे जिनमें करंट के टर्मिनल्स हैं, और फॉर प्रोग्रेसिव कस्टमर्स व्हाट वी हैव इज कि जो आप देखें रेड येलो ब्लू वायर्स आ रहे हैं, सो दैट इज अ थ्रेड टाइप ऑफ एन अरेंजमेंट। इन अरेंजमेंट में आपको तार नहीं काटना पड़ता है, आपने तार काट भी दिया तो कोई बात नहीं, आप फेरो लगा करके जोड़ दीजिए उसको। सो यू हैव अ कॉन्टैक्टलेस टाइप, यू हैव अ सिस्टम जिसमें सीटी खुलने की कोई डर नहीं होगा, राइट? सो दोस टाइप ऑफ थिंग्स वी कीप ऑन क्रॉस पॉलिनेटिंग। कई कस्टमर्स को ये कॉन्सेप्ट्स पसंद आते हैं एंड वी ऑलवेज फील कि दिस टेक्नोलॉजी शुड बी ब्रॉट इन इंडिया। ये मल्टी फंक्शन मीटर है, और जब हम बोलते हैं मल्टी फंक्शन मीटर तो एक सिंगल मीटर इट कैन टेक केयर ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर्स, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, हार्मोनिक्स, यू नेम इट एंड यू हैव इट। इसके अलावा ये मीटर में कनेक्टिविटी कई तरह की मिलती है, लाइक 485 ईथरनेट, राइट? ये हमारा एक नया लॉन्च प्रोडक्ट है जिसको एलिट 500 बोलते हैं। एंड इस प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले है एक टीवी के बराबर का रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, यू गेट अ कलर डिस्प्ले। और आप जो भी इस पर जो डिस्प्ले अभी आ रहा है, दिस इज अ बार ग्राफ ऑफ द हार्मोनिक्स विद मोर एंड मोर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कमिंग ऑन द पैनल्स। लाइक आज के दिन में लोग सॉफ्ट स्टार्टर्स ले रहे हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स ले रहे हैं, उन सब के साथ में पावर सिस्टम में हार्मोनिक्स काफ़ी जनरेट होती हैं। सो दिस डिवाइस besides doing the normal multifunction job, it can also provide the harmonic information, again which can be used to design filters so that harmonic can be suppressed then and there and keep the installation safe. Different screens you can get from this product. इसके अलावा we are also in the business of transducers, and what we have is a programmable transducer. You can get a single transducer and then based on the client's requirement कि किस तरह का आपको आउटपुट चाहिए, किस तरह का इनपुट चाहिए रहेगा, you can program it on the fly. So using a USB and using a software which is available on the internet, you can on the fly modify the transducer to suit the customer requirement. Moving ahead, we have a power quality meter, and power quality is a new concept in India, but basically एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक बार मैं जर्मनी गया था प्रेजेंटेशन देने के लिए इसी प्रोडक्ट की, और मैंने रात भर होटल में प्रोडक्ट चला करके रखा था कि इसमें कुछ डेटा आ जाए ताकि मैं कल जर्मन इंजीनियर से बात कर लूँ। अगले दिन मैं उनके यूटिलिटी में गया और मीटिंग चल रही थी, मैंने बोला मेरे को कुछ डेटा दिखाना है आपके नेटवर्क का। उन्होंने बोला हाँ हम लोग देखना चाहेंगे। तो इस प्रोडक्ट में मैंने डेटा दिखाया कि आपके यहाँ पर जो पावर क्वालिटी है काफ़ी अच्छी चल रही है, और ये क्वालिटी मैंने मेरे होटल के कमरे में रिकॉर्ड करी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद होटल वाला एक यूपीएस से मेरे को सर्व कर रहा है। तो हम लोग आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ पर जो रॉ नेटवर्क का पावर अवेलेबल होता है वो भी एक लेवल पर चल रहा है। सो वी हैव एब्सोल्युटली वेरी क्लीन पावर, एंड दैट वाज रियली अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। देखिए सर, अगर हमारे यहाँ पर क्लीन पावर आएगा तो आपके प्लांट में जितने भी यूपीएस लगे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। आपकी जो सीएनसी मशीन से जिससे आप विंडो कट करते हैं, पैनल्स बनाते हैं, इन सब में कितना बड़ा बैकअप देना पड़ता है। ये प्रॉब्लम आपके यहाँ पर है, एंड द सेम प्रॉब्लम इज एक्सट्रापोलेटेड टू एवरीवन हु इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो लाइक लॉर्ड केल्विन ने बोला था कि आप नापेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। So this is the meter which measures power quality and it will show a reflection कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं पावर क्वालिटी में। तो पावर क्वालिटी बेसिकली जैसे एक 10 रुपए की छाछ के डब्बे पर लिखा रहता है कि इसके अंदर में कंटेंट क्या क्या है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग 150 साल से यूज कर रहे हैं, हमने आज तक क्वालिटी नहीं पूछी इसकी। तो अब समय आ गया है इसकी क्वालिटी जानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए बंदों। मैं जस्ट खत्म होने वाला है प्रेजेंटेशन मेरा। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। हम लोग वर्ल्ड वाइड में जो पैनल बिल्डर्स हैं लाइक सीमेंस, एबीबी, यूरोप में
उन लोग ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़ करते हैं और इसका नाम है प्रोमीटर है। सो अगेन इट इज़ द प्रोडक्ट मेंट फॉर बल्क मीटरिंग, ट्रांसफॉर्मर्स में लगता है ये। और हैरानी तब होती है कि उनके जो ऑर्डर होते हैं जो यूरोप में जाते हैं वो सप्लाई होकर के बांग्लादेश में आ रहे हैं, और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होती है, इंडोनेशिया में प्रोडक्ट आ रहे हैं। सो इट इज सो नाइस एंड सो नाइस टू अंडरस्टैंड कि आवर एशियन कंट्रीज दे ऑर्डर टू सीमेंस इन यूरोप एंड इवेंचुअली the product it still contains a made in India meter. This is something that I really wanted to share with you कि सर जो अपन SMEs के लिए जो पैनल बनाते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा लोड बन जाएगा। लोड बनेगा मतलब दे आर गोइंग टू बिकम बिग कस्टमर्स ऑफ आवर्स। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक छोटा सा काम करना है उनको, दे नीड टू क्रश मार्बल, दे नीड टू मेक a filler for the paints, they need to make fillers for some other industry. तो ये छोटे छोटे जो प्रोसेस प्लांट के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनकी जो सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि इनका प्लांट कैसे चल रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए इनको एक स्किल मैन पावर रखना पड़ता है। स्किल मैन पावर मतलब आपको एक मैन पावर 3 शिफ्ट के लिए रखना पड़ेगा, तब तो टाइम जाके काम हो पाएगा। तो उस नीड को पूरा करने के लिए एक सिस्टम है हमारा, जिसमें आप इंडिविजुअल मीटर्स को साथ में जोड़ सकते हैं एक डेटा कंसंट्रेटर से, और ये डेटा कंसंट्रेटर अपने डेटा को इंटरनेट पे डाल देगा। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके मोबाइल पर या उसके लैपटॉप पर उनके प्लांट की खबर आती रहेगी। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि यस्टरडे क्या हुआ था, तो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी कि मेरे प्लांट में बिजली 20 घंटे थी, मेरी मोटर चली थी 16 घंटे, और मोटर सही में लोड पर चली थी सिर्फ 8 घंटे। इतनी 8 घंटे तक मेरी मोटर आइडलिंग कर रही थी। तो इसको तो मैं प्रिवेंट कर सकता था ताकि मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाए। My humble submission is that when SMEs and some guys, some entrepreneurs, they come to you for doing something, probably आपका एक्सपीरियंस आप उनको शेयर कर सकते हैं कि how they can address their OPEX or how they can further improve the efficiency of their operations. Again एक नया फील्ड इमर्ज होते जा रहा है सर, जो मैं शेयर करना चाहूँगा। बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स पैनल्स नहीं होते ये, पर ये जिससे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ रही हैं, इन बिल्डिंग्स पर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो उनके राइजर पर लगता है। राइजर मतलब कि हर फ्लोर पर एक पैनल रहता है जहाँ पर उनकी मीटरिंग और कंट्रोल डिवाइसेस लगे रहते हैं। तो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमको मीटर्स, इनके लिए मीटरिंग सॉल्यूशन चाहिए। तो इनके लिए जो मीटरिंग चैलेंज होता है वो ये रहता है कि इनको जो बिजली बोर्ड से बिजली मिलती है वो 1 मीटर में मिलती है जो गेट पर लगा रहता है। अब उस पर जो बिल आता है 80 लाख रुपए का बिल आएगा, जो इन सब से कलेक्ट करना है इनको। अगर कलेक्शन वॉलंटरी रहा तो कभी भी पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा, राइट? भले कितनी भी एलिट सोसाइटी में आप रह रहे हैं, ह्यूमन नेचर है कि जब तक डेडलाइन नहीं आती लोग क्लेमिंग करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो मीटिंग सिस्टम है वो ऐसा है कि उसमें आपको पहले पैसे डालने पड़ते हैं, फिर बाद में आपको बिजली मिलता है। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, पर ये मीटर के अंदर में काफ़ी अच्छे अच्छे कम्युनिकेशन के डिवाइसेस लगे हुए हैं। लाइक मीटर के अंदर में नेटवर्क के लिए आप सिम डाल सकते हैं तो डेटा पीछे चला जाएगा। एक और ऑप्शन है कि मीटर में एक ब्लूटूथ का डिवाइस लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके राइजर पर मीटर लगा हुआ है और ब्लूटूथ डिवाइस यूजर के मोबाइल पर डेटा भेज रहा है कि यस्टरडे आपने 600 रुपये की बिजली खर्च करी है, क्योंकि आपके घर में इतने सारे एसी चलते हैं, और आपने डीजी पर ही 350 रुपये खर्च कर दिए हैं। तो एक तरह से उनको अवेयर कर रहा है साथ में, एंड दे कैन कंट्रोल देयर एनर्जी कंजम्पशन। आपके और मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपको मौका मिले इस तरह के पैनल डिजाइन करने का, सो द वैल्यू एडिशन दैट यू कैन डू इज, ये पैनल का जो फेस होना चाहिए उस अपार्टमेंट के घर की तरफ फेस होना चाहिए, क्योंकि रेडियोस लाइन ऑफ साइड पे चलते हैं। रेडियो के बीच में अगर दीवार आ जाएगी तो सिग्नल नहीं आएगी। जैसे आपका ब्लूटूथ हेडफोन है, आप दूसरे तीसरे कमरे में चले जाएंगे तो आवाज आना बंद हो जाती है। टू सम अप सर, हम लोग भी, हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग, वो हमारा डेवलपमेंट सेंटर है जो पायरोटेक के काफ़ी पास में है, प्रताप नगर में है। यहाँ पर हम लोग के पास में 600 डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं जो मीटिंग सिस्टम्स पर काम करते रहते हैं।
पूरी दुनिया में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जहाँ पर एक छत के नीचे इतने सारे लोग सिर्फ मीटर बनाने के लिए काम करते हैं। सो हमारा फोकस होता है अच्छी क्वालिटी और अच्छी रिलायबिलिटी के प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि एक रिलायबिलिटी ऐसी चीज़ है जो कस्टमर को हेल्प कर सकती है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग देयर ओनरशिप। एंड वी आर हियर विद नो क्विबल्स वारंटी। नो क्विबल्स मतलब कि हमको पता है कि हमारा एक मीटर लोगों ने जो 110 वोल्ट का मीटर था 240 में लगा करके जला दिया, नो प्रॉब्लम समझ रहा है। कोई ऐसा एक बार कर सकता है, सेकेंड टाइम नहीं करेगा। बट आपकी जो कीमती पैनल है उसमें अगर हमारा प्रोडक्ट रहेगा तो उन दोनों एसेट्स को देख करके आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, दे विल बी सो हैप्पी टू हैव अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। और मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले जो बायर्स हैं उन लोग सॉल्यूशन खरीदना चाहते हैं और उन लोग ये बोलते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके इकोसिस्टम में और भी लोग हैं, उनके साथ में अपन सॉल्यूशन को क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन बिल्ड टुगेदर अ सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच अगेन। If you have questions, if you have any questions, I will be so pleased to answer. Yes, please, sir. In our society, Sir, we have power from Adani. Recently, on our meters, they have put some kind of a model. right. Earlier, the reader used to come every month. Now they say that the reader will not have to come. They have put some kind of a model with 2 meters, and with that help of that modem, they'll be able to read our meters from their substation. Substation is about 2 kilometers away from our society. So can you explain how that is done with so many interim buildings and all that? Yes, sir. Thank you for the great question, sir. तो बेसिकली अडानी और पूरे इंडिया में जो नए तरह के मीटर लग रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई भी नए मीटर दिखे इधर इंडिया में जो बिलिंग के लिए काम आने हैं वो सब स्मार्ट मीटर होने चाहिए। अब नॉर्मल मीटर और स्मार्ट मीटर का फर्क अपन को समझना चाहिए। अपन को इलेक्ट्रॉनिक मीटर से अपन वाकिफ हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीटर कैन मेजर लॉट ऑफ पैरामीटर्स, बट इट विल डिस्प्ले द पैरामीटर्स एंड इट विल रिकॉर्ड द पैरामीटर्स विद इन इट्स मेमोरी। इट विल नॉट कम्युनिकेट इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बट इन केस ऑफ स्मार्ट मीटर में 2 चीज़ होती है, एक तो मीटर खुद होता है और एक उसके साथ में लगा हुआ मॉडम होता है। तो यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में दिस इज अ मीटर और ये उसके ऊपर जो ग्राउंड लगा हुआ है दैट इज अ मॉडम। सो आई रिपीट अगेन, ये जो मीटर है ये एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है और उसमें एक इनबिल्ट मॉडम लगा हुआ है। इंडिया में अडानी रेस में थोड़े से पिछड़ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि मीटर पहले लगा दिया और मॉडम बाद में लगा रहे हैं। सो ये स्कीम चलती ऐसे है कि जितने भी मॉडेम्स हैं ये सब इन मॉडेम के अंदर में एक सिम कार्ड लगा हुआ है और ये सिम कार्ड NB-IoT पे चलता है, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये M2M करके टेक्नोलॉजी होती है। M2M मतलब मशीन टू मशीन। अपन जो देखेंगे कि अपने पास में मोबाइल फोन है तो इस मोबाइल से अपन पर्सन टू पर्सन बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, राइट? तो 800 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल बिक नहीं सकते देखा जाए तो, पर 1000 करोड़ से ज़्यादा M2M डिवाइसेस हैं जहाँ पर मशीनें बात करती थी आपस में। उसी तरह से ये स्मार्ट मीटर के अंदर एक सिम कार्ड लगा है और सर उसका डेटा अडानी के सेंट्रल सर्वर में चले जाता है और वो डेटा का जो अपडेट रेट है हर 15-15 मिनट में अपडेट होता रहता है। तो उनको ये पता लग जाता है कि कौन से सेगमेंट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ताकि उन लोग नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कर लें। और एक और अच्छी चीज़ जो होगी सर, हमारे हिसाब से होनी चाहिए कि हमने वो इम्प्लीमेंट करी है। जैसे मेरे घर में लाइट चली गई तो मैं फ़ोन करूँगा आज तो यही होगा कि वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा, राइट? पर अगर मेरे यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया और बिजली बोर्ड ने अपने प्रोसेसेस चेंज कर लिए, तो मान लीजिए मेरे यहाँ लाइट चली गई, मैं फ़ोन करूँगा तो वहाँ से लोग बोलेंगे राजेश वी आर सो सॉरी, मेरे को पता आपके यहाँ की लाइट चली गई है। ऐसा जवाब सुन करके तो मैं घर जाऊँगा। ये लोग बोलेंगे कि पड़ोसी में देखिए आप, शर्मा जी का लाइट है, ब्रह्मा जी का लाइट है, स्ट्रीट लाइट भी जल रही है।
आपकी सर्विस लाइन खराब हो गई असल में। हमारा ट्रक मोहल्ले में घूम रहा था तो वो आपके घर की तरफ जाने का बोल दिया गया उसको, और 8 मिनट बाद आपके यहाँ लाइट जल रही है। तो ये ताकत है स्मार्ट मीटर की कि अगर मीटर बिजली बोर्ड से लगातार बात कर रहा है तो बिजली बोर्ड को आपके हालात बिल्कुल पता है हर समय के, और आपको वो ज़्यादा लंबे समय तक डार्क में नहीं छोड़ेंगे। सो इट इज दे आर एक्सटेंडिंग देयर सर्विसेज एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। Thank you. थैंक यू सर। Any more questions, or I should have been and you're very He's feeling hungry now. Yeah. So, please sir. Just now, what Mr. Rajesh has said, that आपके घर में ये सर्विस लाइन खराब हो गई, हमको पहले पता चल गया. This is we are already experiencing in Bhilwara. In Bhilwara, Secure Meters has taken over the entire distribution, and now it is really fantastic. I don't think any customer, every customer is happy over there, and within 10 minutes, their person 100% he reaches there and removes the fault whatever is there in the system. Earlier, when they came, that time there was a lot of resistance because earlier the other meters were not running or something like that. So people started getting very high bills. But slowly and slowly everything was calm and cool, and now it is a fantastic working. I am really happy that Secure Meters has taken. They have done a very very good job. Now I request PS Naresa sir to give thanks to everybody and sir को अपनी तरफ से बताएं. Good afternoon, everybody. It's a great pleasure on behalf of COSMA. I am giving a vote of thanks. First of all, I'd like to thank Secure Meters for all their facilities, their help, and the beautiful technical lecture Mr. Rajesh has given. Secure Meter was brought by a very dynamic Rajasthan Cosmo Vice Chairman Lodha. He is very active, and Mr. Kazi you have been chairman. So we are very thankful to Mr. Lodha to have made Secure Meter as a pattern member. I thank Mr. Lodha for accepting that membership. Secure Meter is a very dynamic and unique company, and it is my privilege that I know Secure Meter right from the beginning. The way they have expanded and the way they have developed their products is unique. Initially, when Secure Meter started, it was Pyrotech who imported 4 meters for them. Because that time license Raj was there and we had an import license. We gave 4 meters to Secure Meters. They were big black colored meters. And we went to Mr. Yadav to do further R&D where the lab is in his name. Then the story, that today they are the biggest manufacturer of meter probably in the world, and they have the full range of metering solutions. So we are proud to have Secure Meter as our member. It needs an Pattern acronym. member. I thank all our members who have come from various cities of Rajasthan, Jaipur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Bhilwara, and Mr. Lodha told that within 1 or 2 years, we will make something more than 80 members. So it will be a very big challenge for us, and 80 members in Rajasthan will be a very big achievement. And
I'll also thank the organizers of the secure meters here. And further then, I'd like to state that COSMA having 500 members, and 500 members, all members are average life of 20 to 25 years. So we have a very big knowledge base in COSMA, and nearly about 500 into 25, so it will be around 12,000 year of experience, 12,000 year engineering experience. So it is a very big experience we have, and as the Chairman told that it is to be now interconnected and network. So once we have that network, then of course the sky will be limit. Again, I will not be much between you because the lunch is waiting, and lunch hosted by Secure Meters. So thank you very much for coming here, and thank you. I think this was a wonderful get together. It was a great knowledge sharing session also. We as a Secure are very much happy that people from all across Rajasthan and other parts of India also visited our plant and appreciated us. And in the near future also, wherever there are events of COSMA membership or COSMA events are there, we would try our best to present our company and products also. I think initially when Mr. Luda approached me, I was not so much aware about COSMA, what is the activities they are doing, what may be the size of COSMA. But once seeing this together and seeing the presentation and seeing the energy of the members of COSMA, enthusiasm of COSMA members, I feel that was a great decision that Secure took. And I wish all the best to all the members, and let's make together this COSMA a bigger family. Let's have more members together and work together. Thank you so much. I would like to invite all of you to have the lunch. I think it's already we are late, so just join us for the lunch. Thank you so much. Thank you.